Today you will see Pastor Robin delivering the Word of God to the youngsters. You will see lives being transformed as Pastor Robin Almeida delivers the Word of God through the mighty power of the Holy Ghost. We believe that you will be blessed through today's broadcast. Stay with us, keep watching. Pyare Masiha. Praise the Lord. Hallelujah. कितना अच्छा लगता है इतने खूबसूरत चेहरे एक जगह पे. So many beautiful faces in one place. अच्छा लगता है. Welcome my dear. Praise the Lord. Hallelujah. एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे चालू करने से पहले. Are you ready? Stand up for the exercise. Everybody lift your hands. सब लोग अपने हाथों को ऊपर उठाओ. ऐसा रखो, ऐसा मत. ऐसे रखना. दोनों हाथ सब लोग रे. ये क्या फटेला इधर स्लीव्स ब्यूज नहीं ना, तो उठाओ हाथ. यस. और सब लोग नहाएला कि नहीं? पुस डीओ बीओ मारेला. उठाओ अभी ऊपर. ओके. नाउ वन बाय वन, एक एक करके we will drive out the evil things in your life, sicknesses, diseases, curses. तो one by one I will say lust, anger. तो एक एक चीज जब मैं बोलूंगा तुम बोलोगे आउट. क्या बोलोगे? आउट नहीं. You're chasing the devil out of your life, so you gotta command and say out. Come on everybody, lift your hands and say out. Cancer, arthritis, diabetes, blood pressure, AIDS, anger, broken relationships, depression, frustration, anger, selfishness, jealousy, ego, pride, failure, in the name of Jesus. Brokenness, weakness, in the name of Jesus. Out. Oh, I feel deliverance now. Deliverance. I feel deliverance. छुटकारा महसूस हो रहा है यहाँ पे. छुटकारा महसूस हो रहा है. Are you feeling loose now? अब एक काम करना, अपने हाथों को ऐसे रखो. अभी ऐसा था, अभी घुमाओ ऐसे. Now one by one we will call the presence of God and you got to say come. क्या बोलोगे? Come. Everybody say that. इधर कुछ लोग हाथ नहीं उठाएला. तुम लोग हाथ किधर डालेला? Come on everybody. Come. Jesus. Holy Spirit. Power. Anointing. Healing. Deliverance. Miracles. Success. Love, joy, peace, power, passion, success, money, prosperity, in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Are you feeling the victory in this place? महसूस हो रहा है कुछ तो? See all that you lost. See,
For some people this is like okay, it's just a game. कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक खेल हो सकता है, लेकिन तुमको ये पता नहीं जब तुम ये कर रहे हो आत्मिकता में, something is happening in the spiritual realm. Something is happening in the spiritual realm. I can see broken relationships being healed. As you're saying, come, I can see lost people coming back in your life. I can see lost jobs coming back. I can see lost opportunities coming back. I can see lost destiny coming back. I can see something happening in your life. Now the last one. Keep your hands like this. Keep your hand, just your right hand. Khali right hand ko aisa rakhna. Upar. Everybody. Something is going to happen now. Now I'm going to say one by one. I'll say Jesus is Lord. You got to say yes. Hey, wait. Keep some safe distance. नहीं तो किसी का छाती वाती फोड़ देगा तुम लोग. हालेलुया. तुम लोग ऐसे यस करोगे सब slain in spirit मिलेंगे. हालेलुया. Are you with me? Come on. Let there be power in your yes. Jesus is Lord. My God is alive. God is good. We all are His children. You all are blessed. You all are delivered. You all are sleeping. क्या है तुम लोग? कुछ भी बोला ये? बैठो अभी. Open your Bible to Matthew chapter 14 and verse number 24. The Gospel of Matthew, verse number 24 and chapter number 14. Somebody already got it. कुछ लोगों को पता चल गया क्या होने वाला है आज की सुबह में. Matthew chapter 14 verse number 24. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was against it. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost," and they cried out with fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I, do not be afraid." And Peter answered to him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." So Jesus said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." Somebody say, "Lord, save me." See, you can say, "Lord, save me," because you're sitting on a comfortable chair. You're not sinking now. If you would have been sinking, अगर ये तुम्हारी चेयर टूट के जमीन फट के अगर अंदर घुसने लगते थे, तो बैठ के "Lord, save me" नहीं बोलते. कैसे बोलते? अभी बराबर निकला आवाज तुम लोगों का. Praise the Lord. And immediately Jesus stretched out his hand, caught him, and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" And when they got out of the boat, the wind ceased, and those who were in the boat came and worshipped him, saying, "Truly, you are, and you alone are the Son of the living God." Hallelujah. My topic for this morning is, जिसने मुझे बुलाया उसने मुझे उठाया.
The one who called me has lifted me up. Hallelujah. Somebody tell your neighbor, the one who called me has lifted me. Tell your neighbor, जिसने मुझे बुलाया उसी ने मुझे उठाया. आज के तारीख में सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हम लोग असली और नकली की पहचान भूल गए. We don't have discernment within us to discern what is good and what is bad. We don't have, the devil has taken the sense out of us. हमारे अंदर से वो विचारधारा निकाल दिए शैतान ने, ताकि हम वो चीज पहचाने कि सही चीज कौन सी है और गलत चीज कौन सी है. क्योंकि आज के तारीख में हमको सही चीज गलत लगती है और गलत चीज सही लगती है. हम लोग जब यहाँ पे आए थे तभी वी वर नॉट नोन लाइक पास्टर रॉबिन अल्मेडा आने वाले हैं. एंड जब कल शाम को जब वो आए थे एंड हम लोग ने जब उनका प्रोमो देखा था, इट वाज प्रीटी डिफरेंट, प्रीटी ऑसम एंड लाइक फुल ऑफ लाइफ. ऐसा मैंने लाइफ में, मेरे को तो लगता है मैंने मेरे लाइफ में ऐसा प्रीचर मैंने लाइफ में कभी देखा नहीं होगा. परमेश्वर ने इंसान से कहा, ये पूरा बागीचा तुम्हारा है. दिस एंटायर गार्डन बिलोंग्स टू यू. सब कुछ खाओ, लेकिन वो फल मत खाओ जो वहां पे है. अगर वो खाओगे तो तुम मर जाओगे. लेकिन इन लोगों को बाकी सारे फल नहीं खाने थे, सिर्फ वही फल को देख के. वही फ्रूट अच्छा लग रहा है उसको. घर में बीवी है, बाहर के फ्रूट देख रहा है, क्योंकि बाहर के फ्रूट टेस्टी लगते हैं कभी कभी. असली नकली की पहचान भूल गए हैं. परमेश्वर ने बोला, ये 90% बाग तुम्हारा है, वो 10% जो हिस्सा है वो मेरा है. लेकिन हमको वो 10% ही रखना है. टाइथिंग का रजिस्टर देखो तो कितने जन ने 10% का एप्पल खाया हुआ है पता चलेगा. नहीं नहीं, इस बारे में बात नहीं करूं. नहीं, इस बारे में बात नहीं करूंगा. सॉरी सॉरी, बुरा. Hallelujah. Hallelujah. Are you getting what I'm saying? असली और नकली की पहचान भूल गए हैं. सही मोहब्बत क्या है, नकली मोहब्बत क्या है, वो भूल गए हैं हम लोग. अच्छी चीज कौन सी है, बुरी चीज कौन सी है, वो समझ नहीं पा रहे हैं. क्योंकि आमतौर पे नकली चीज का डेकोरेशन अच्छा होता है और असली चीज का डेकोरेशन नहीं होता है, तो हमको लगता है ये चीज अच्छी है. कभी आपने देखा है पानी की बोतल को, पानी की बोतल पे कोई डेकोरेशन नहीं है क्योंकि वो असली है, उसके अंदर पानी है. लेकिन देखो दारू की बोतल को, आहा क्या फिगर है. हेवर्ड्स 2024-36-24. पीने की भी जरूरत नहीं, बोतल देख के पहला नशा आ जाता. नकली चीज को शैतान ने सजाया हुआ है. असली चीज फिजूल पड़ी रहती है क्योंकि वो असली है. असली चीज बोलती है मुझे ले तो ले, क्योंकि जिंदगी तुमको ही मिलेगी. अगर तुम वहां जा रहे हो नकली चीज से तुम बेवकूफ बन रहे हो तो मौत तुम्ही को मिलेगी. कुछ लोगों को कभी कभी ऐसा प्रचार सुनने की आदत है, एनीबडी फीलिंग बैड, नो नो. और नकली चीज आपको अच्छी लगेगी. कितना अच्छे से बात किया ना. एक मैं आता हूं, ये क्या डराता. पहचान सीखो, पहचान सीखो. हम लोग भूल गए हैं सच्ची मोहब्बत कौन सी है, झूठी मोहब्बत कौन सी है. देखो शैतान हर चीज सजाता है. तुम्हारे पास भेजने से पहले वो हर चीज को सजा के बैठेगा. तुमने कभी भी देखा है जो असली चीज है, जैसे कि कैश्यू नट, बादाम, पिस्ता, उसके पैकेट देखो, उसका कोई डेकोरेशन नहीं है, वैसे ही प्लास्टिक में अंदर जो है वो बाहर से दिख रहा है. देखा कभी मॉल में जाओ. लेकिन जो तंबाकू, 555, मालब्रो, कितना खूबसूरत पैकेट बनाया उसका. नीचे भी लिखा भी है, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिगरेट स्मोकिंग. हालेलुया. एडवर्टाइज भी आते, एक कश में डबल एनॉइंटिंग.
हालेलुया। और फूकते रहते हैं उसको, मुंह से, नाक से, कहां से धुआं बाहर निकलता। परमेश्वर ने नाक सही जगह पे दिया है, देखा है? अगर नाक को चिमनी का काम करना था तो यहां देता था नाक को, ताकि फैक्ट्री का धुआं बाहर छोड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी नकली चीज असली लगती है, असली चीज नकली लगती है, और हम लोग फर्क भूल गए हैं इन सब चीजों में। आज हम लोग ये भी भूल गए हैं कि किसने हमको जन्म दिया, किसने हमको संभाला, किसने हमको पाला, इतना बड़ा किया। जब तुम रात को रो रहे थे, तुम्हारे लिए जाग के किसने तुम्हारे लिए दवाइयां लाई डॉक्टर के पास से, किसने तुम्हारे हाथ पैर दबाए, किसने तुमको दूध पिलाया, कौन तुमको स्कूल ले जाता था, किसने तुमको बड़ा किया। आज हम भूल गए हैं, और 10 बार बुलाने के बाद एक बार जवाब आता है। किसी को तो पढ़ रही है अभी। बेबी, बेबी, व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? अचानक से तुम पहचान भूल गए। बेबी बोला तो याद आया, एक बार एक लेडी मेरे पास आई और बोली, पास्टर मेरी बेबी खाना नहीं खाती। मैंने बोला लाओ बेबी को, प्रे करेंगे, खाना भी खाएगी। तो दूसरे दिन वो आई मेरे ऑफिस में। मैं बोला मैं बेबी को लाई हूं और आप प्रे करो बेबी के लिए। मैं बोला अंदर भेजो ना बेबी को। जैसा कैबिन का दरवाजा खुला, बेबी आ रही है, इतना बड़ा ड्रम अंदर चला आ रहा है। मैं बोला ये बेबी है और ये खाना नहीं खाती, क्या हवा भरेला इसके अंदर? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एनीवे, जब माँ बाप बुलाते हैं, हम भूल गए हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। हम भूल गए, we have forgotten all those favors that they have done for us। और हमको लगता है वो तो उनकी ड्यूटी थी, उन लोगों ने वैसा ही करना चाहिए था। अगर उन लोगों ने अपनी ड्यूटी की तो तुम्हारी भी कुछ ड्यूटी बनती है उनके प्रति, सही बात है। लेकिन आज तुम उनको भूल गए हो, उनके बरसों का प्यार भूल गए हो, और किसी के एक एसएमएस के ऊपर फिदा हो गए हो। किसी का एक एसएमएस आया और तुम फिदा हो गए। भूल गए जिसने तुमको 22 साल पाला, जिसने तुमको छाती से लगाया, जिसने तुमको दूध पिलाया, उसको भूल गए हो और निकल गए कहीं और उसको रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हो और पहचान भी भूल गए उसकी। और आज जब वो करहा रहे, आज जब वो तुम्हारे को अपने पास लेने देख रहे हैं, तुम उससे दूर चले जा रहे हो, क्योंकि हम फर्क भूल गए हैं असली और नकली की। मोहब्बत भूल गए, मां बाप की मोहब्बत भूल गए हैं। एक मां थी, उसकी एक बेटी थी, और ये मां बहुत अच्छी नहीं दिखती थी, खूबसूरत नहीं दिखती थी, क्योंकि उसकी एक आंख फूटी हुई थी, उस मां की एक आंख नहीं थी। और ये बेटी उससे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसकी मां अच्छी नहीं दिखती थी, उसकी मां खराब दिखती थी। उसको शर्म आता था लोगों को मिलाने में, मीट माय मामा, ये मेरी मां है, ये बोलने में उसको शर्म आता था, क्योंकि उसकी मां अच्छी नहीं दिखती थी। और जब भी उसकी मां उसको प्लेग्राउंड में उसकी सहेलियों के साथ खेलते समय मिलने आती, तो वो मां को भगाती थी, तू क्यों आई मुझसे मिलने यहाँ पे? क्योंकि मेरे दोस्त मुझ पे हंसते हैं, क्योंकि तेरी मां ऐसी दिखती है, तू जा यहां से। फिर एक दिन उसकी मां चली गई स्कूल में, उसको स्कूल से लाने के लिए। उसने बोला तू यहां मत आया कर, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स मुझ पे हंसते हैं, तू अच्छी नहीं दिखती है, तेरी आंख फूटी हुई है, तू जा यहां से। और मां चली गई वहां से रोते हुए। मां के दिल में दर्द था, लेकिन उसने अपने बेटी को कुछ नहीं बोला। और एक दिन वो बेटी बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई। बेटी की शादी हो गई, अपने पति के घर पे दूर चली गई, और उसको भी बच्चा हुआ। हंसी खुशी जीने लगी वहां पे। और एक दिन उसके कॉलेज का रीयूनियन था, तो वापस से उसको उसी एरिया में आना पड़ा जहां पे वो रहती थी। और वो कॉलेज में जाके अपने सहेलियों से मिलके अपने घर की तरफ गई, तो घर पे ताला था। उसने सोचा चलो इस बूढ़ी से थोड़ा देख के आते, बुढ़िया कहां पे है, ये बूढ़ी माँ, ये जो अच्छी नहीं दिखती, ये बदसूरत माँ से जरा मिल के आते। और वहां पे गई तो माँ
दरवाजा लॉक था उस घर का, और बाजू में से एक आंटी आई, उसने बोला बेटी तू आ गई, और वो भागने की कोशिश कर रही थी। उसने बोला रुक जा बेटी, तेरी मां की मौत हो चुकी है, वो मर गई है। वो बोली ठीक है मुझे जाने दो। उसने बोला ठहरो, तुम्हारी मां एक बहुत अच्छी औरत थी। तो इसने बोला क्या हुआ? मैं तो उससे नफरत करती हूं, मुझे वो अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसकी एक आंख फूटी हुई है, मुझे वो पसंद नहीं है क्योंकि वो बदसूरत है। तो उसने कहा पता है उसकी एक आंख क्यों फूटी थी? क्योंकि जब तू छोटी थी तेरा एक्सीडेंट हो गया था, और जब तेरा एक्सीडेंट हो गया था तो एक आंख से अंधी हो गई थी, और डॉक्टर ने पूछा कौन आएगा इस बेटी को एक आंख का डोनेशन देने के लिए, तब कोई नहीं आया, लेकिन तेरी मां खड़ी हो गई, उसने एक आंख निकाल के उसने अपने आंखों का बलिदान दिया ताकि उसके आंखों से तू दुनिया देख सके, तू खूबसूरती देख सके, इसलिए उसने अपने जीवन का बलिदान किया है। तुम्हारे मां ने तुमको आज यहां पे भेजा है, तुम्हारे माता पिता ने बहुत सारे बलिदान किए हैं तुम्हारे लिए, तुमको पता भी नहीं होगा। बचपन से लेके आज तक, आज तुम्हारे पास डिग्री है, आज तुम पढ़े हो, आज तुम अपना इंग्लिश का एक्सेंट बताते हो, तुम्हारे माँ को शायद नहीं, लेकिन उसने बर्तन मांज के तुमको पढ़ाया है, और तुम भूल गए हो उसकी मेहरबानियां। अगर वो नहीं होते तो तुम आज यहां नहीं होते। Pastor Robin, we love you. You rock. तुम उनके ड्रेसिंग पे हंसते हो, तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम उनको मिलाते नहीं हो क्योंकि उनको तुम्हारे लेटेस्ट फैशंस नहीं आते हैं, और तुम उनको लंबे रखते हो, दूर रखते हो क्योंकि तुम्हारे लेटेस्ट ट्रेंड के साथ वो मैच नहीं हो पाते हैं। तुम तो हाई फाई लोग हो, लेकिन तुम भूल गए हो जिस कोख से तुम निकले हो वो कहीं तुम्हारे घर के कोने में बैठ के आंसू बहा रही है और तुम्हारी सफलता का प्रार्थना कर रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम भूल गए हैं उस माँ बाप को जिसके आंखों से हम लोग आज दुनिया देख रहे हैं। तुम आज चल रहे हो क्योंकि पहला कदम उसने उंगली पकड़ के तुमको चलना सिखाया था। तुम आज बोल रहे हो क्योंकि सबसे पहले उसने तुमको सिखाया था। मम्मा, डाडा, जीसस बोलने के लिए तुम्हारे माँ ने सिखाया था, लेकिन तुम आज भूल गए हो उनकी मेहरबानियों को। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी तुम यहां बैठे हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता घर में बैठ के तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं ताकि तुम जब तीसरे दिन आओ तुम्हारी जिंदगी सफल हो के तुम यहां से बाहर निकलो। वो लोग तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। और सच हमको झूठ लगता है और झूठ हमको सच लगने लगता है। इसलिए ये जो गॉस्पल और ये जो यीशु मसीह का सच फैलाना इतना मुश्किल हो गया है रे। आज दुनिया को सच अगर इस तरह चिल्ला चिल्ला के बोलो तो भी लोगों को यीशु मसीह झूठा लगता है, क्रिश्चियनिटी झूठा लगता है। झूठ कितना आहिस्ते से बोला जाता है तो भी अच्छा लगता है, लेकिन सच या चिल्ला चिल्ला के बोलो तो भी लोगों के समझ में नहीं आता, ये भेजे के अंदर घुसता नहीं है। क्योंकि शैतान ने ऐसा गेम खेला है कि असली चीज नकली लगने लगे और नकली चीज असली लगने लगे, और आज पूरी दुनिया फंस गई है इस चक्रव्यूह में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सही आदमी हमको गलत लगता है, गलत आदमी हमको सही लगता है। कोई हमारे अच्छाई के लिए कुछ बोले तो हमको लगता है वो हमारे दुश्मन है। कोई हमको ले जाते हैं बुरे संगत में, वो हमको अच्छे लगने लगते हैं। क्योंकि शैतान ने ये गेम खेला है ताकि आपके जीवन में कंफ्यूजन हो और आप सच को झूठ और झूठ को सच मानने लगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यही लफड़ा हो गया जब एक दिन सारे शिष्य नाव में बैठे हुए थे, रात का समय था और यीशु वहां था, और इन लोगों ने बोला वो देखो ही इज अ गोस्ट, वो देखो वो भूत है। ओ माय गॉड, खुदा को देख के भूत बोलते हैं, क्योंकि आज के तारीख में भूत को पूजा करके खुदा बोलते हैं। सही जगह पे जाओ, वहां आराधना करो तो दुनिया तुमको रोकेगी, नहीं वो गलत जगह है, वहां मत जाओ। हे, ये क्या हो रहा है रे?
ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सही और गलत की पहचान निकल गई है हमारे दिमाग के अंदर से। ये क्या हो रहा है? यीशु को देख के बोल रहे हैं ये भूत है। बोट के अंदर है वो लोग और घोस्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है रात का समय था। रात का समय था। It was dark all over and Jesus came walking on the water. That's why they said he is a ghost. रात में यीशु उनको भूत दिखाई दिया। एक चीज मैं आपको बताता हूं, आंसुओं से अपने आंखों को इतना धुंधला मत करो ताकि आपका आशीष भी आपको शराब दिखाई दे। We believe that you have been blessed through today's broadcast. As Pastor Robin was ministering to the youngsters, the divine power of the Holy Ghost was touching them. They were convicted of their sin, and many of the youngsters surrendered their lives to Jesus Christ. What a blessing it is to see today's new generation being saved. Coming up next on प्यारे मसीहा। मुझे इसके लिए गुस्सा नहीं आता है कि 12 लोग में एक पीटर ने बोला हूं क्या। मुझे इसके लिए गुस्सा आता है क्योंकि 11 लोग बोट में चुपचाप बैठे हैं। आज की कलीसिया को वो एक आदमी नहीं मार रहा है जिसको कुछ एक्स्ट्रा करना है, वो 11 लोग आज की कलीसिया को मार रहे हैं जिनको जिंदगी में कुछ करना नहीं। तुमको पता है यू आर प्रेशियस बट द डेविल विल पुट, इफ यू आर प्रेशियस यू कुड हैव डन, बट एवरी टाइम व्हेन द वीक स्टार्ट्स I tell Sunday, bow down. Monday, be my slave. Tuesday, serve me. Wednesday, serve me. Thursday, bow down. Friday, bow down. Saturday, bow down. Because you 7 days of the week, you are my slave.